observations, then you must. Your literature. अगर ये होता है कि आप पहले लिटरेचर रिव्यू दिखा दें उसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं Okay, sir. पहले ही ना। अच्छा जी फाइनल सेकंड लास्ट क्वेश्चन Yes, sir. ये कन्वीनियंस आपकी क्यों करना शुरू So because I've been taking data from the students because my core motive was to explore the intermediate intention. And for that, post-graduate students were the ideal population. But it is not about idealism or realism. I am talking about why you are using non-probabilistic convenience something when there is no need right now. because, sir, for my population, I cannot have a list of all the students which are studying in all the universities. In the world, there might be another method. You can suggest me the methods. You ought to get to convenience. Something is something which is done with a resource constrained people. You have a lot of resource of time भी है आपके पास या students as well या everything. तो convenience क्यों कर रही है इसका rational यहाँ तो आप बना दी ठीक है और demographics नहीं दिखाया आपने कहीं पे. Yes, sir. Why? These are important, I think. Yes, sir. I have क्यों नहीं demographics in my thesis, but मैं यहाँ बात कर रहा हूँ. yes, not I haven't included them in the presentation, sir. Why? I thought it might because which मतलब जो मैंने देखे थे बनी हुई presentation में कहीं जिक्र नहीं था तो I thought क्या नहीं it's not about ये होना चाहिए बस इससे इम्पोर्टेंट बात पता चलती है कि हो सकता है कि जेंडर आप बायस्ड हो बहुत ज्यादा आपका सैंपल ही अजीब सा हो आप जो चीज निकाल रही हैं उसमें जेंडर बाइसिंग हो एज बाइसिंग हो एजुकेशन बाइसिंग हो तो बाइसिंग होगी तो फिर तो ये स्टडी ठीक नहीं होगी. Yes, sir. अनबाइस्ड होना चाहिए तो वो हमें उसी तरह पता चलते हैं. आपने बड़ा जोर से आखिर में कहा अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस. Yes. ये क्यों बता रही हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट. So, sir, it shows the robustness of my model as the total variance which is explained by my नहीं अब आपने वो बता दिया 45 points keepers. लेकिन आप अनएक्सप्लेन्ड को क्यों कर रही Sir, I हो. have mentioned that is my conclusion because क्यों there must be more studies done on the same topics to explore that why this is unexplored, or there must be more mediators and moderators should be added to make the model or to get the biggest number than 45.3%. any one mediator or moderator can you suggest for future. For future, yes, sir. For future, I can suggest product development through AI and नहीं moderator और mediator आप तो end to end आ रहे हैं. I'm not getting the same question, sorry. Oh, you have just mentioned कि इसको कम करने का तरीका हम कर सकते हैं कि कोई और intervening variables होंगे interactions हो रही कोई आप बताइए ना. Sir, I'm mentioning कि हमें मैंने बड़ा टारगेट क्वेश्चन किया है मीडिएटर या मॉडरेटर होता है जो हमें ऐड करना चाहिए. Let's say, आपके ख्याल में जो आपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ये देखा तो क्या होना चाहिए. Yes, sir. For moderating variable, we can say कि what are the government policies to अच्छा गवर्नमेंट पॉलिसी मॉडरेटर और अगर mediator है तो हम ये कर सकते हैं कि what are the project ठीक है वो आप फ्यूचर डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं जी. लेकिन आपने इसको थोड़ा मेंशन नहीं किया. चलिए थैंक यू. अच्छा जी. अच्छा मैं क्वेश्चन कर लूँ आपसे. जी. अच्छा एक सवाल तो अभी जो डॉक्टर साहब ने किया उसी से लिंक फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टूडेंट्स एज वेल.
मीडिएटर और मॉडरेटर में फर्क क्या होता है, और आपने जो दो मीडिएटर डिसाइड किए, क्या ये मॉडरेटर बन सकते हैं? अपनी डायग्राम खोल लें। जी, इधर से ये ज़्यादा होगा ना, क्योंकि सब लिंक करेंगे इधर। आपने बड़ा कर लें इसको, प्रेजेंटेशन को। अभी आपने इधर दो मीडिएटर्स डिसाइड किए हैं ना, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये मीडिएटर ही क्यों डिसाइड किए हैं? कांट दे बिकम मॉडरेटर, और नहीं बन सकते तो उसकी क्या लॉजिक है? Sir, I have decided these two mediators because previous studies which I have also mentioned in the literature review, that they thought that they had suggested that opportunity litigation is the strongest mediator. And there are some other studies which are suggesting some more mediators. But moderator is something which is influencing the relation between the mediator and the dependent mediator. Both the we can add any moderator. Moderator, sir, for example, we can add moderator. What are the government policies for implementing or for supporting the AI as a moderator? मैं समझ आ गई, ठीक है, वो तो आपने भी बताया भी, हमने भी कहा ठीक है, वो गवर्नमेंट पॉलिसीज की समझ आती है कि मॉडरेटर। क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज मीडिएटर बन सकती हैं? मेरा सवाल ये है। Government policy. हाँ, बन सकती हैं कि नहीं बन सकती? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? या इनमें से आप किसी को मॉडरेटर बना सकती हैं? भाई, आपका क्वेश्चन होना चाहिए था ना कि ये क्यों, भाई ये क्यों मीडिएटर लोगों ने कंसिडर किए हैं, कोई और भी मतलब इनको मॉडरेटर क्यों नहीं बनाया, या मॉडरेटर को मीडिएटर क्यों नहीं बनाया? Yes. आप मास्टर स्टूडेंट है ना, रिसर्च कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस नए नए आने चाहिए ना। Yes. उनको पर एक्सप्लोर भी करना चाहिए कि यार क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों नहीं है ऐसा। यही तुम्हारा काम है, व्हाट वेयर व्हाई, Yes. यही तो एक्सप्लोर करना है ना। किसी के किए हुए काम पे मक्खी तो नहीं मारनी। आपने भी सोचना है कि क्यों किया था उसने। तो मेरा ये सवाल है आपसे कि क्यों, व्हाई? सर, जो मीडिएटर्स होते हैं वो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने स्टडीज भी पढ़ी है उसके मुताबिक जो अंडरस्टैंडिंग है, वो फैक्टर्स होते हैं जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं ऑपरेशनली किसी तरीके से। और जो मॉडरेटर्स होते हैं उसमें तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं सर। उसमें कहीं आप अगर कहें कि आप जेंडर को भी मॉडरेटर ऐसा मॉडरेटर लेना चाहें तो उसको भी इन्फ्लुएंस बीच में डाला जा सकता है। या अगर आप कोई जो आपका जो जिसकी आप जो पॉपुलेशन है उसकी कोई बैकग्राउंड स्टडी किया है, क्या उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई, तो उसको भी एज अ मॉडरेटर इंक्लूड किया जा सकता है। इससे रिलेटेड सवाल ये कि इनको मॉडरेटर बनाया जा सकता है, जो दो आपने लिखे, इसी डेफिनेशन को अगर आप सोचें, जरा इस पे अप्लाई करें, देखें क्या हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अपॉर्चुनिटी अगर हम इसको मॉडरेटर बना देंगे एआई और इंटरप्रेन्योरियल इन्वेंशन के बीच में, तो आई डोंट नो सर इट वुड बी वर्क एज मॉडरेटर और नॉट। आप डेफिनेशन आपने बताई है ना मुझे, उसको सोचें जरा कि मॉडरेटर मीडिएटर की। मॉडरेटर का क्राइटेरिया ये है कि वो एक्चुअली जो दो वेरिएबल्स होती है उसके रिलेशन को कैसे इन्फ्लुएंस करना। तो ये तो एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंसर है। अगर एआई एनहांस करती है अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन को, तो अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन की वजह से जो है इंटरप्रेन्योरियल रिलेशन फॉर्म्स होती है, शेप होती ठीक, आर यू श्योर ऑन दिस? है। यस। अच्छा, इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। मेरे ख्याल में तो इट कुड बी अ मॉडरेटर एज वेल, बट हो सकता है मैं गलत हूँ, कि मैं ये एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मेरी जो अंडरस्टैंडिंग मेरी बताती है वही बताती है कि दिस कुड बी अ मॉडरेटर एज वेल। अगर आप इसको एज अ मॉडरेटर ट्रीट करें और अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चन से डिफाइन करें, देयर कुड बी क्वेश्चंस व्हिच कुड बेस्ड ऑन दिस, बट ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए मुझे, आपको, हर एक को, कि हमने किसको बनाना है, क्यों बनाना है, उसकी वजह क्या है। सिर्फ किसी के कहने पे नहीं, कुछ सोच समझ के। अच्छा, दूसरी चीज ये है, आपका लिटरेचर रिव्यू पे अगर आप चले जाएं स्लाइड्स के ऊपर, इस बार अभी बड़ी कि लिटरेचर रिव्यू इस तरह से प्रेजेंट नहीं किया जाता जिस तरह आपने प्रेजेंट किया है। आपको जो इंपॉर्टेंट पेपर्स थे ना, वो वन बाय वन एटलीस्ट बेस लाइन पेपर की मेथोडोलॉजी को एक्सप्लेन करना चाहिए था कि ये पेपर इम्प्लीमेंट हुआ कैसे है, ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी आती कि किसी और ने कैसे किया है काम जो आप कर रही है। हमें एक आइडिया हो जाता ना कि जी हाँ, आप अकेली नहीं है, एक वैलिडेशन हुई हुई है, किसी ने की हुई है। उसका तरीका ये था, उसने भी इस तरह से क्वेश्चनर बनाए थे, उसने भी कुछ वेरिएबल्स लिए थे, और वेरिएबल्स के कुछ मीडिएटर कुछ मॉडरेटर थे। तो आपको थोड़ा सा उस तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए था। दिस इज एवरीबॉडी, नहीं मतलब दोस्त मेंशंस पे मैं कह रहा हूँ कि लिटरेचर रिव्यू हमेशा बताया था इस बैकग्राउंड से कि आप ये लोगों को फीलिंग दे सके कि मैं ओनली बंदी नहीं हूँ इस काम के अंदर, ये और भी लोग काम पे किया उन्होंने, और इस तरह से किया, मेरी तरह से ही किया है। यस। मैंने हवा में तीर नहीं चलाया।
तो ये एक ऑडियंस को ना एक कॉन्फिडेंस देने के परस्पेक्टिव से लिटरेचर रिव्यू प्रेजेंट किया जाता है। तो एवरी लिटरेचर रिव्यू मस्ट बी इन सम सीक्वेंस ऑफ अप्रोप्रिएट स्लाइड्स। तो इस तरह से एक स्लाइड पे 6 पेपर लिख देना नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है। एक तो ये, दूसरा ये कि लिटरेचर रिव्यू में अभी डॉक्टर साहब ने भी हाईलाइट किया, आपने पेपर्स जो शो किए हुए ना, इसमें जो लेटेस्ट पेपर है, क्योंकि आपका टॉपिक है एआई की इफेक्ट एनालिसिस सॉर्ट ऑफ थिंग, जी तो आपके लिटरेचर रिव्यू में सबसे लेटेस्ट पेपर कौन सा है जहां से गैप्स निकाले हैं आपने? मैं आप गैप्स पे आ रहा हूँ, गैप्स पे अगर आप चली जाओ गैप्स की स्लाइड के ऊपर भी, यस उधर भी आपने कुछ पेपर्स रेफर किए हुए। हाँ, यहाँ पे आप देखें, आपने जो लेटेस्ट पेपर डिस्कस किया, गैप्स तो निकलते हैं लेटेस्ट काम से ना, कि यार ये काम नहीं हुआ हुआ आज तक किसी ने किया नहीं है तो मैं करूँ। तो अब आप, अगर मैं ये सवाल आपसे करूँ तो आपको क्या हो सकता है, आपने यहाँ शो ना किया हो, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि व्हाट इज द लेटेस्ट पेपर विच यू हैव कंसिडर्ड बेस्ड ऑन विच यू हैव डिफाइंड योर गैप्स। ओके सर there was some paper from 2025 and 2026 as well which I have derived on the apps. बट आपने उनको इस काबिल नहीं समझा कि अपनी स्लाइड के ऊपर डालें। स्लाइड पे जो लेटेस्ट पेपर है वो किस साल का है? सर वो एक है शर्मा एट ऑल 2026। तो पहली बात तो ये कि जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो इधर होनी चाहिए ना, नजर आनी चाहिए। अगर वो था उसको यहाँ होना चाहिए था, लेकिन चले था। अब मुझे बताएं वो क्या गैप था जो उसमें आपने फिगर आउट किया। आपके ने यस किया तो मैं आपसे सवाल अगला करूंगा कि वो क्या गैप था उस 2026 के पेपर में जो आके आपके टॉपिक से रिलेटेड था और आपने पढ़ा। यस सर जो हमारा जो गैप्स है अपना इम्पैक्ट अभी जो एक ये कुछ स्टडीज में मेंशन लिखी हुई हैं कि नैगिसन की स्टडी है, तो वो उसकी उसे इस पेपर में उसने ये प्रूव किया था कि ये जो डिजिटलाइजेशन है इसकी जो है ना एप्लीकेशन ज्यादा पेनिट्रेट करेगी, तो दैट शुड बी एक्सप्लोर्ड फॉर इन रेफरेंस टू द इंटरमीडिएट इंटेंशन कि ये अब उसको, क्योंकि पेनिट्रेशन उसकी जो स्पीड या जो पेस है एआई की वो इतनी ज्यादा है कि नाउ पीपल टेंड टू थिंक दे यूज्ड टू लेसन देयर cognitive load and they use AI for everything. So ये जो आगे ऊपर मैंने मेंशन किया इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि मतलब देयर मस्ट बी वन स्टडी। वो जो स्टडी मेरी है जैसे जो दो मीडिएटर्स मैंने डाली, इस तरह की कोई स्टडी पहले है नहीं। बहुत सारी स्टडी ऐसी हैं जिसमें मीडिएटर्स हैं, जैसे अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन का मीडिएटर इज वेरी फेमस वन, बट उसको विद एआई के इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स से यूज नहीं किया गया। तो तो मुझे अभी आपकी जितनी एक्सप्लेनेशन थी ना, हाँ उससे ये समझ आई कि कुछ फाइंडिंग्स हैं उस पेपर की, बट गैप कभी भी समझ नहीं आया। गैप क्या था उसमें? ऐसी क्या चीज थी जो कि आप समझती हैं कि नहीं किया गया था उस पेपर? कोई एक चीज। सर गैप यही था ना कि उसमें जैसे कि जो पहला पेपर है या सेकंड करने के there is a lack of empirical evidence supporting the impact of AI driven on opportunity creation, innovation, creativity and entrepreneurial tendencies. यानी इस पेपर ने भी वही गैप आइडेंटिफाई किया जो 2025 या 2026 में एक बंदे ने 6 साल बाद आइडेंटिफाई किया। 6 साल तक काम ही किसी ने नहीं किया उसके ऊपर। काम तो बहुत है सर, लेकिन एग्जैक्टली इस तरह से नहीं हुआ कि किसी ने इस तरह से दो मीडिएटर्स डालकर चेक करने की कोशिश की हो कि हाउ entrepreneurial intentions are influenced by the artificial intelligence. ये जो आपने 2 मिलीलीटर्स डाले हैं, आज तक किसी ने इसको इस तरह चेक नहीं किया। ये आपका ये क्लेम है। Sir, Again, मैं तो as to my knowledge, there are possibilities of research to एक समुद्र है. There must be many work done, but मेरी नजर से नहीं गुजरा सर. विद द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज ये आप पहली दफा कर रही हैं। जी सर. चल, ठीक है। सर आपके वो क्लेम स्टडीज हैं. नहीं सही है। आप मैं आपके सवालों से, आपके जवाबों से ही मैं आपके सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए इसका मकसद क्या है, अंडरस्टैंडिंग। ये चीजें हमको पता होनी चाहिए कि नहीं पता। मैं अगेन, आप जो मेरे सवाल हैं आपके जहन में रहेंगे, आप समझती हैं कि जी आपने कोई चीज ठीक जवाब नहीं दी, तो जाके एक्सप्लोर करें उसको, ठीक तरीके से करेक्शन अप्लाई कर ले। दिस इज ये। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज अगेन फ्रॉम एवरीबडीज परस्पेक्टिव, आपने ये रेफरेंसेस दिए हुए हैं। अब ये पहला बंदे का नाम लिखा है नम्बी-सान एटल 2019, ऐसे ही है ना? Yes. मतलब आप समझती हैं कि मुझे ऑथर से कोई इंटरेस्ट है यहाँ पे किसी को, कि किसने लिखा है ये, मिस्टर XYZ ने, ABC ने? हमें या यानी ऑडियंस को किस इंटरेस्ट हो सकता है एक पेपर को देख के? आपने मुझसे सब्जेक्ट भी पढ़ा है, मैंने आपको उस पर एक्सप्लेन भी किया था कि मेरा और आपका यानी जो ऑडियंस है ना, उसका इंटरेस्ट रिसर्च पेपर के ऑथर्स में नहीं होता।
वो पढ़ना भी मुश्किल है आपके लिए। अब पता नहीं आज आपकी एब्रीविएशन निकाल, मतलब इसको हिजे करेंगे ये क्या लिखा है, कहीं कुछ नाम। तो नामों को मेंशन करना शायद जरूरी नहीं होता। इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है एक पेपर के अंदर? सर इम्पोर्टेंट पेपर के अंदर ये चीज होती है कि पेपर का पब्लिशर कौन है। आपने तो ये बताया था सर कि मतलब पब्लिशर मस्ट बी क्या बताया लेक्चर हो गया, और जो उसका जो इम्पैक्ट फैक्टर है जर्नल का वो क्या बैक था। फैक्टर की बेस पे क्या चीज होती है? और सर आपने HIV के बारे में बताया था कि उसकी वो है, और इसके अलावा आपने बताया था कि आपने भी कहा था कि लेटेस्ट पेपर लीजिएगा पिछले 4-5 साल से पुराने इस तरह से साल ठीक है, समझ आता है, साल इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा एक हमने कहा था क्वार्टाइल वैल्यूज होती हैं, Q1 जर्नल है, Q2 जर्नल है। तो मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा ये होता है कि जर्नल का नाम और उसका क्वार्टाइल मेंशन करें आप, क्योंकि दैट वुड इंडिकेट कि एक अच्छा पेपर है जो आपने ये नहीं है। अब देखें, अब सर डॉक्टर साहब ने आपसे पेपर खुलवाया ना, वो जर्नल जब आप जाके देखते हैं तो वो जर्नल बिल्कुल 1:2, एक शायद फालतू जगह का जर्नल है जिसका कोई हो सकता है इम्पैक्ट फैक्टर भी ना हो। Yes, sir. आपको भी अच्छा आइडिया होगा जब इधर आप लिखेंगे ये चीज, और हमें भी अच्छा आइडिया होगा कि हमने अच्छी जगह से पढ़ा है अगर यहाँ पे ये चीज मेंशन हो इंस्टेड ऑफ ऑथर्स। दिस इज फॉर एवरीबडी, आइंदा भी आप भी ख्याल रखें, ऑथर्स के नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। Okay, यू sir. नीड टू मेंशन द जर्नल नेम एंड द क्वार्टाइल, दैट इज अ गुड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ दैट रेफरेंस विच यू आर यूजिंग। ठीक है, लगता है यहाँ कुछ सीखनी चाहिए जैसे कोई आपको ये स्टाइल भी नहीं है, आपकी मर्जी है। फिलहाल मैं इस पे नहीं जाऊंगा, वो आप अगेन एकेडमिक पर्सपेक्टिव से अब आप देख लीजिएगा। जी सर। अब मेरा एक मैथमेटिक्स से फॉर्मूला क्वेश्चन है आपसे। आपने इधर बहुत सारे पैरामीटर्स दिखाए, डॉक्टर साहब ने वो क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन मैं आपसे वो क्वेश्चन अब करना चाहूंगा। आपने एक जगह आर आर स्क्वायर वैल्यू निकाली थी और बहुत सारे किए, लेकिन मैं एक चलिए सबसे आसान वाला जो चीज़ है वो पूछता हूँ कि आपको वो आती है कि नहीं आती। और सुलन आनी चाहिए, क्योंकि आपने बार बार वेरिएंस का नाम लिया कि जी वेरिएंस 45% है, 60% है, 90% है। आर स्क्वायर निकाला है आपने, ये बताएंगे कि ये आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता क्या है, अगर सामने लिख सकें आप? आपने यूज किया है ना इसको, तो फिर कहीं ना कहीं तो देखा होगा। डिप्रेशन क्या है ये आर स्क्वायर का? कोई कहीं लिखा हुआ है? चले खोल के रेफरेंस से खोल ले, मुझे ये भी नहीं रिक्वायरमेंट का आपको याद हो। आपने किसी पब्लिकेशन में पढ़ा होगा या इम्प्लीमेंट तो किया है ना, ये वैल्यूज निकाली है तो कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन की होगी। यस सर। वो अगर वहां से देख के दिखा सकें। दिस इज विद दिस perspective कि every research student who is standing here, he or she must know what mathematics they are using. यस ये नहीं कि बस एक दिया किसी एक इनोवा को दे दिया या SPSS को दे दिया, उसने निकाल के दे दिया, ये नहीं। तो आपको पता होना चाहिए ना, विद योर आई वुड से नॉलेज, यू मस्ट हैव फिगर्ड इट आउट। मैं इसलिए आपसे क्वेश्चन भी इसीलिए कर रहा हूँ। नहीं किया तो बता दें, नहीं किया कोई बात नहीं, अगर किया तो लिखिए और बताएं कि सामने लिखिए आर स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, कैसे निकाला आपने, ये वैल्यू कैसे निकाली है। तो जो रिलेशन की क्वेश्चन है आप चाहे वो लिखो जो y इज इक्वल टू वो वाली इक्वेशन है जो रिलेशन। सवाल तो सादा सही है, आर स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है? इसका ताल्लुक वेरिएंस से है ना, रिग्रेशन से है। यस रिग्रेशन, चले एक और आसान सवाल, रिग्रेशन क्या होती है, चले ये बता दें पहले। सर। फॉर्मूला कुछ नहीं सीखे हैं वाले को दिखा देते हैं। फॉर्मूला दिखा दो। ना देखिए आप उसमें क्लास में जाकर। हाँ मैंने कहा आप डिस्कशन ओके ओके रोजर। और ज्यादा कर रहे हैं बात को नहीं पढ़ सकते।
आपके क्वेश्चन को मार्कर हुआ है वाइट बोर्ड पर नीचे करोगे क्वेश्चन और रिलेशन बता दो सर आपसे सॉरी Just उसमें तो बिना इंटरेस्ट है ऐसे नहीं तो कि AI इनको EI and CI जो है जो मेडिटेशन जैसे लिखना चाहे लेके मैं तो जो है लेबल मेरा डिफिनेशन है और डिप्रेशन जो है वो फाइंड आउट करिए कि हाउ जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है कि डिपेंडेंट टेंशन कैसे फॉर्म हो रही है विद द हेल्प ऑफ माय प्रेडिक्टर्स जो AI CI और यस क्या है, कुछ भी नहीं है। आप मुझे रिग्रेशन एक्सप्लेन कर देंगे, व्हाट एग्रेशन क्यों किया था, चले ये बता दो, बस ये समझा दें, बोर्ड पे समझा दें। देखिए मेरा क्वेश्चन करने का मकसद ये है कि देखें आप यहाँ जब खड़े हो ना, तो जो स्लाइड पे आपके एक एक लफ्ज होता है ना, वो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया। रिसर्च स्टूडेंट का ये काम होता है। यस कुछ चीजें ये नहीं है कि बस वो पता है लोगों को या वो ऐसी जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो आपको भी नहीं पता। तो रिग्रेशन का एक मकसद होता है, रिग्रेशन क्यों की जाती है, वो मकसद में आपको अगर नहीं पता तो आप पता करें और अपने नॉलेज में डालें। उस वक्त तक आपका ये सारा काम यूज कैसे क्या, आपको पता ही नहीं कि रिग्रेशन होती क्या है। सर मुझे मेरे जहन में फॉर्मूला नहीं आ रहा सर नहीं फॉर्मूला मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, मुझे एक्सप्लेन कर दे रिग्रेशन क्या होती है। चलिए आपने रिग्रेशन निकाली है, आपने वेरियस बार बार लफ्ज यूज किया, SPSS या नवो पे काम किया है, क्यों किया जाता है ये रिग्रेशन। रिग्रेशन फाइंड आउट किया जाता है कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल यानी जो हमारी मुझे एक डायग्राम में अगर एक्सप्लेन कर देंगे जी, ये मेरा वेरिएबल है जिसको मैं रिग्रेस कर रही हूँ सर, वो बताएं उसकी वैल्यूज ये आ रही है, मैं उसको रिग्रेस कर रही हूँ इस डाटा से। सर तो ये मैंने ये लिखने की कोशिश किया कि मेरा जो वेरिएबल है सर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है मेरा टेक्नोलॉजी इंटरजेक्शन मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैं एक्चुअली देख रही हूँ कि वो किस तरह से फॉर्म होता है मेरे प्रेडिक्टर्स यानी जो मेरा मैंने रिग्रेस किया हुआ है मेरा यही जो वेरिएबल मैं चेक कर रही हूँ जो मेरे प्रेडिक्टर्स है यानी मेरा जो AI है CI है और जो प्रेडिक्शन वो किस तरह से ये मिलकर किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी इंटरजेक्शन प्रेडिक्ट कैसे कर रहे हैं टेक्नोलॉजी इंटरजेक्शन उसकी किस चीज को अफेक्ट कर रहे हैं, उसके बहुत सारे स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स है ना कुछ, उनमें क्या चीज है जिसको आप चेक कर रही हैं। उसकी मीन को चेक कर रही हैं, उसके आप एवरेज को चेक कर रही हैं, आप उसके मीडियन को चेक कर रही हैं, आप उसके स्टैंडर्ड डेविएशन को चेक कर रही हैं, आप उसकी वेरिएंस को चेक कर रही हैं, ये क्वेश्चन है ना। या वेरिएबल को चेक कर रही हैं, वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर रही हैं। आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है ना, तो इसमें तो कुछ इसमें इस पे रोशनी डाले ना। जी सर तो ये मैं ये पहले और देखें मैडम नहीं पता तो यस नो, देखें जबरदस्ती के जवाब नहीं देने, नहीं पता बस
अपने आप को डिसंगेज कर लेंगे, नहीं सर मुझे नहीं पता, मैं पढ़ लूंगी। दिस इज अ वेरी गुड आंसर टू अ क्वेश्चन के सॉरी सर आई डू नॉट नो इट, मैं एक्सप्लोर करके आई कम बैक टू यू, ताकि आप भी अननेसेसरी शर्मिंदगी से बचें, मैं भी बिला जाएगा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कोई और सवाल कर लूँ। सही है Sir, I should let you know your जी। तो इसमें मैं आपने अब तक जो जवाब दिए ठीक नहीं दिए, आपको ये देखना चाहिए, और ना सिर्फ इसको बल्कि सारे जो आपने एनालिसिस किए उन सबकी नॉलेज और उनकी बेसिक्स को समझने की कोशिश करें, जाके देखें कि मैंने अगर इसमें कोरिलेशन एनालिसिस की है तो वो होती क्या है, क्यों होती है, किन वेरिएबल्स की बेस पे होती है, मैथमेटिक्स क्या है, रिग्रेशन एनालिसिस है, ये सबसे आसान चीज़ है कि आपने एक वेरिएंस को ऑब्जर्व करना है कि आपका डाटा और जो एक्चुअल डाटा है वो आप उससे कितना राइट लेफ्ट मूव कर रही है। रिग्रेशन का मतलब ये होता है, चलें बात होगी। तो रिग्रेशन एनालिसिस इसलिए की जाती है कि आप विद इन अ बाउंड है। इसमें अगला क्वेश्चन मेरा ये, चलें छोड़ दें इसकी जो मैथमेटिक्स है, कितनी रिग्रेशन एनालिसिस की जो आर स्क्वायर की वैल्यू है वो कितनी वैल्यू जो है वो आप कहते हैं कि जी ये सोशल साइंसेज में एक्सेप्टेबल, So more than 25 अप टू व्हाट, मोर देन 25, परसेंट से लेकर 100% तक? नहीं सर, वो तो फिर इसका इशू आ सकते हैं इस किस्म की, कि डेटा जो है वो बहुत ज्यादा हाईली हो जाता है, क्लस्टर्ड हो जाता है अराउंड द रिग्रेशन लाइन। तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू नहीं पता, बट लीस्ट मतलब जो थ्रेशोल्ड जो मैंने स्टडी किया था कि मोर देन 25% होना चाहिए, व्हिच इज एक्सेप्टेबल। इज इट स्ट्रांगली मतलब एनालिसिस स्टेट्स के आप ठीक जा रहे हैं, मतलब आपने ग्लव्स बीच में यूज किया था मीडियम स्ट्रॉन्ग समथिंग, एक स्लाइड पे कहीं बात की थी कि मैं मीडियम है। हाँ हाँ ये रिलेशनशिप है मेरा। तो ये जो 25% की डेफिनेशन है, इज इट व्हाट, मॉडरेट रिलेशनशिप? इसका लीस्ट थ्रेशोल्ड के इससे बड़ा रिग्रेशन होना चाहिए, वो इससे बड़ा आना चाहिए। कॉस्ट का वैल्यू होगी तो जब रिग्रेशन को बनेंगे, मैंने स्पेसिफिकली निकाल लिया, बट देन आई स्टडी रिग्रेशन। तो एक्चुअली हमारी आर स्क्वायर की हाई वैल्यू यहाँ पे हमारे आर स्क्वायर की जो हाई वैल्यू होती है ना, हमें वो ये भी सजेस्ट आप करती है। स्लाइड पे अपनी चले जाओ ना, वहां पे एक वैल्यू लिखी है आपने, उससे रिलेट कर लेते हैं, वहां पे कोई 0.57 के 0.45 समथिंग कोई नंबर था एक। तो देखिए, मैं अब जो सर हमारे पास जो रिग्रेशन की जो लाइन होती है, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ स्लाइड पे चले जाओ, अच्छा फिर आप लाइनों पे फिर सॉरी चली सॉरी गई हैं, जो सॉरी आपको पता ही कुछ नहीं लाइनों का, तो फिर लाइनों पे ना ही जाए तो अच्छा है। आप यहाँ से एक्सप्लेन करें मुझे कि मेरी ये वैल्यू आई है और इसका ये इंटरप्रिटेशन है, ये जवाब दें बस। आर स्क्वायर का है तो ये आर वैल्यू जो है ये 0.61 है, और जब इसका आर स्क्वायर लिया तो ये 0.38 है। और सर ये जो 0.38 है ये एक मॉडरेट रिलेशनशिप को जो है ना डिफाइन कर रही है, क्योंकि जो इसका थ्रेशोल्ड है वो 0.25 होता है। तो ये कितना, यानी ये वाला जो मेरा मीटर है ये AI मॉडल है सर। तो ये AI यानी किस तरह कितना फॉर्म किया अपॉर्चुनिटी रिलेशन सिर्फ इन दोनों वेरिएबल्स की चलत आ रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हमारी जो अपॉर्चुनिटी रिलेशन है इसमें 38% वेरिएंस आ रही है। अच्छा। तो आप कह रही हैं कि चलें मैं अभी सिर्फ आप मैं ये ठीक है गलत बात की उस पर भी नहीं जाता, 38% आपका आंसर आ रहा है आर स्क्वायर का। तो मतलब ये क्यों लोअर साइड पे क्यों एक्सेप्टेबल है आपको, वाई ये इसकी अपर लिमिट क्यों नहीं है, मतलब एक रिग्रेशन एनालिसिस करनी हो आपने तो आपकी कोशिश होती है जो लाइन है उस लाइन के करीब रहे, यानी वेरिएंस होनी चाहिए बहुत कम होनी चाहिए, 80% प्लस क्लोज है तो आप अच्छे जा रहे हैं। अगर आप बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं 25% में, आप बहुत दूर हैं एक्चुअल डाटा से, तो क्यों एक्सेप्टेबल है आपको ये, कभी इसको एक्सप्लोर किया? 25% लिखा कहीं पढ़ लिया आपने, क्यों सर जी, क्यों सर 25% क्यों, वाई नॉट 75%, वाई नॉट 85%, वाई नॉट 95%? सर, हमारे जो ऐसे subjects होते हैं जैसे कि जो आप मेडिकल, जवाब देंगे वो मैं आपसे एक्सप्लोर करवाऊंगा, ये ध्यान में रखिए। मतलब अभी इसको आप खुद ऑनलाइन देखेंगी इस सवाल के जवाब को कि जिसका जवाब क्या है, अब आप जवाब दें। सर हमारी जो 25% क्यों एक्सेप्टेबल? स्टडीज है हम्म। उससे, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते ये दवाई का इफेक्ट मरीज पे कितना है, तो इसके लिए उनको वेरियस बहुत हाई रिक्वायर्ड होता है। उनको वो कॉन्फिडेंस इंटरवल भी 99 हाई रिक्वायर होता है या कम रिक्वायर होता है वेरिएंस? वेरियंस का मतलब है वो आर वैल्यू हाई रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि वो लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल भी 99% पे काम करते हैं। हम सर सोशल साइंस वाले 95% पे काम करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोग ये कॉन्सेप्ट बड़े वेग होते हैं, जैसे अब मैंने अगर बनाया है कि इंटरमिनोरियल इंटेंशन जो है शेप हो रही है इसकी वजह से, बट दिस इज दीज आर फॉर द वीक मॉडल्स, क्योंकि ये
अगर देखा जाए तो इंटरप्रेन्योरियल इंटेंशन इसके अलावा भी 1000 चीजों से जो है ना मॉडरेट होती है, फॉर्म होती थी। तो सोशल साइंसेज के जो आप कहेंगे थ्रेशोल्ड्स या जो लिमिट वैल्यूज हैं वो कम है। लेकिन अगर मैं कोई मेडिकल साइंस पढ़ रही या मुझे किसी मेडिकल इंटरवेंशन को देखना होती है, दवाई मरीज पे असर करेगी या मरीज मर जाएगा, तो फिर ज्यादा सर मेरी ठीक है, अभी आपने सही जवाब दिया, ठीक है, एग्रीड, ठीक है, यही जवाब है। तो इसलिए ये लो लेवल एक्सेप्टेबल है, क्योंकि सोशल साइंसेज में ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती हैं, इनके अंदर कुछ वेरिएबल्स इस तरह के होते हैं। तो और कोई मैथमेटिक्स का सवाल करूं मैं आपसे, या काफ़ी है इतना? सर एज पर योर विश सर, आई वांट गुड मार्क्स सर। आप मुझे खंगाल जितना खंगाल है, मेरी जितनी कैपेसिटी मैं वहां तक जाने की कोशिश करूंगी सर। अब आपकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है सर, मुझे अपने लेवल पे मत खंगालिएगा, आप तो पीएचडी है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल अपने लेवल पे, मेरी पीएचडी इसमें नहीं है, डॉक्टर साहब की पीएचडी इसमें है, मेरा एरिया नहीं है। मैं तो आपसे, देखिए मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरा मकसद ये है कि जब वहाँ स्टूडेंट खड़ा है ना, तो उसने जो लिखा है उसको पता होना चाहिए मैंने क्या लिखा। आपकी स्लाइड में से सवाल आते हैं, आप स्लाइड कम रखें, कम सवाल आएंगे। हमने तो यही पूछना है जो आपने लिखा हुआ है। अगर ठीक लिखा हुआ, और आपका काम ये होना चाहिए कि जो लिखे हैं उसको अच्छी तरह पढ़ लें भाई, कि मैंने क्यों लिखा है, इसका मकसद क्या है, व्हाट वाई वेयर व्हेन, ये क्वेश्चंस उसमें सोच लें पहले। बस ये, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। आपकी नॉलेज मुझसे या किसी भी स्टूडेंट की नॉलेज उस जो वहाँ टीम बैठी होती है उससे ज्यादा होती है, क्योंकि आप करंट हैं। मैं इसके ऊपर अभी करंट नहीं हूं, मैं इसको एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा अपना एक लिमिटेशन है, हर इंसान की लिमिटेशन है। आप इसमें बेस्ट हैं इस वक्त, तो आपको अकॉर्डिंगली वो डिस्प्ले करना चाहिए यहाँ पे, कि आपसे अच्छा कोई नहीं है। तो यही चेक होता है बस, सिर्फ, और तो कोई खास चीज चेक नहीं होती। और ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ। अ, आपके पास फील्ड क्वेश्चन हैं कहीं? अगर कोई मुझे फील्ड क्वेश्चन दिखा दें जिसका कोई सवाल जवाब लिए हो आप। आप लोग ब्रेक करना चाहिए, ब्रेक कर लेंगे बस, ठीक है। अभी हैंडल हर, अभी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं रह गई है। तो अभी 1:25 हो रहे हैं, वी कैन हैव अ ब्रेक। आप लंच और अपना जो भी नमाज पढ़नी है, तो अराउंड 2 o'clock हम दोबारा क्लास में। सर ये बात नहीं, अब अगर आपको फॉर्म अपने वो इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन ये तो बेटा है, इसमें मेरा सर जो वन है ना वो मेरी गूगल फॉर्म से ही है। और बाकी जो है मैंने हार्ड कॉपी से है, तो ये वो डेटा जो एचपीसीएस के लिए मैंने बनाया था एक्सेल पे, ये क्वेश्चन वाइज यहाँ आंसर लिखे हैं। जैसे ये जो मेरा यूको वन है, ये शुरू के जो 101 ये वो वाले लोग हैं जिन्होंने मुझे डेटा दिया था गूगल फॉर्म में, गूगल फॉर्म का लिंक भी सब जो है वो। कितने लोगों आपने ऑनलाइन सा आपका इंस्ट्रूमेंट फ्लोट किया था, और कितने परसेंट लोगों ने रिस्पॉन्ड किया आपको? कितना आपने भेजा था, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, सैंपल साइज कितना था? आपने जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग ही की, लेकिन कितना आपको डाटा मिला, कितना? सर 361 लोगों का डेटा मुझे मिला। उन्होंने और आपको सबने ऑनलाइन रिस्पॉन्ड किया? नहीं सर, सब उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया सर, ऑनलाइन रिस्पॉन्स है 101 फ्रॉम्स। बाकियों से आपने हार्ड कॉपी फिल जी कराई? सर, बाकी से हार्ड कॉपी, जैसे मैंने अपने अंदर अपनी यूनिवर्सिटी में आके हार्ड कॉपी स्टूडेंट्स फिल कराई। इसके अलावा मैंने नाम, टेस्ट लिस्ट और आईएलटीएस फिल कराई। और खुद कितने फिल किए इसमें से? सर खुद फिल कौन से कर देते सर, मेरे पास नहीं, सवाल में यस नो, मैं डिटेल नहीं पूछ रहा, खुद कितने फिल किए? कितने फिल करने मतलब सर खुद से क्या, कुछ तो सर वो हार्ड कॉपीज लेते ना मेरी, और कुछ हार्ड कॉपीज में कुछ डेटा जो थे वो लोगों ने मिस कर दिया था, और अब जब मैंने उसको एज इट इज देखा तो वो उसने मेरे मिसिंग वैल्यूज डाल के मुझे पता नहीं 15-16 फॉर्म्स का किसमें मिसिंग वैल्यूज, तो उसको फिर मैंने फिल कर दिया। यानी आपने मेरा 357 डाटा खुद मैन्युफैक्चर नहीं किया, नो नो सिंथेसाइज नहीं किया? नहीं उसका कैसे पता चला आपको कि जी ये सिंथेसाइज, क्या तरीका ऐसा है जो कि बताता है कि जी डाटा सिंथेसाइज नहीं हुआ हुआ? कोई ऐसी चीज निकलती है डाटा में से? ना करें यार, यूं नहीं पता आपको डॉक्टर साहब, ये तो इसको आप फिर आज सी दे दें। सर इन्होंने फाइल में काफी कुछ किया हुआ है, सीएम तक भी किया हुआ है उन्होंने, जो कर भूल जाते क्यों भूल जाती है? हैं।
डॉक्टर साहब कोई क्वेश्चन पूछने पर भी आपने नहीं बताया, फ्रॉम मेडिकल का भी आपने किया और स्क्रीनिंग का डाटा भी आपने की है, ये सारी चीजें आपने की, हम बात भी की वो बताया ना, कोई तो कह रहे हैं अच्छा वैलिडिटी के बारे में आपने कैसे बताया, वो स्क्रीनिंग ऑफ डाटा आपने सारी की है, वो आपने स्टेप फॉलो की है, आपने डाटा के नॉर्मलिटी को चेक इनफैक्ट किया सर जब मैंने मॉस इंस्टॉल करके सीएफए डायग्राम में उसके वेरिएबल्स बनाया ना, तो उस वक्त इनफैक्ट उसने मुझे कहा कि आपके वो मॉस रनिंग नहीं करना, क्योंकि मेरे कुछ वैल्यूज जो थे वो डेटा में मिसिंग थे, मैंने कॉपी पेस्ट किए तो शायद उसमें या जैसे भी, तो फिर उसके बाद से मैंने वो डेटा वो उसको कर जो 355 थे, क्योंकि मेरे पास में जब हार्ड कॉपीज पहले तो इकट्ठे नहीं होते, फिर जब इकट्ठे होते तो थोड़े ज्यादा हो गए, 361 मेरे पास पूरे डेटा फिगर हो गया इसका। पहले उसके बाद फिर सर जो उसमें से जो हार्ड कॉपीज थी उसमें से अच्छा एक 20 मिनट जी सर, देखिए, अगेन सबके लिए जी सर। जितना सवाल किया जाए ना उतना जवाब देना होता है, उसके 2 महीने पहले से शुरू नहीं करना होता, 2 महीने बाद तक नहीं जाना होता, सवाल बड़ा सिंपल, एक सवाल 1 मिनट था, उसमें 1 मिनट जवाब है। मैंने क्वेश्चन ये किया आपसे कि मुझे बता दें कि आपको कैसे पता चला कि मेरा डाटा जो है वो सिंथेसाइज नहीं हुआ हुआ, बाकी ओरिजिनल लोगों से कलेक्ट हुआ हुआ है, इसका एक पैरामीटर कैलकुलेट होता है, उसका नाम ले लें सर, बस ये सवाल है। तो फिर इतनी एक्सप्लेनेशन क्यों दे रही है, बस नाम बताएंगे जी ये नाम है, और अभी डॉक्टर साहब ने आपको नाम बता भी नहीं है बहुत सारे, उसी से कोई सीएफए सर मैंने कैलकुलेट किया था सर, और क्रॉनबैक अल्फा से निकाले थे, क्रॉनबैक अल्फा तो रिलायबिलिटी और स्केल चेक करता है सर, मुझे अच्छा पता है मुझे क्रॉनबैक अल्फा निकाला था मैंने इसकी से। कितना निकला ग्राउंड पे कैल्कुलेट आपका? सर जो सबसे कम निकला था वो 0.78 था, और बाकी सारे 0.8 प्लस, कोई भी 0.9 नहीं था, और उसका क्या थ्रेशोल्ड होता है जो कुछ, अच्छा ग्राउंड बैक डेल्टा क्या, क्या ये ग्राउंड बैक अल्फा क्या आपको कम्युनिकेट क्या करता है, इससे क्या पता चलता है? सर क्रॉनबैक लगता है कि जो हमारा टूल कितना रहा है, क्रॉनबैक अल्फा का जो थ्रेशोल्ड है सोशल साइंसेज के लिए वो है 0.70, और जो बाकी दूसरे मामले में मुझे पता जो मेरे कौन सा टूल रिलायबल है, वो एसपीएसएस के बारे में बता रहे हैं आपको कि एसपीएसएस रिलायबल डाटा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, या आपने वो मेरे मैं सवाल है मेरा कि जी ग्राउंड बैक की 0.7 वैल्यू आ गई, ये किस चीज के बारे में आपको रिलायबिलिटी इंफॉर्मेशन दे रहा है? क्वेश्चंस के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मेरे 18 जो स्केल है वो अब जो